Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सभी दर्शकों को अभिवादन। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, one thing is very, very important in this world. इस संसार में एक बात तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। For every single individual. हर एक व्यक्ति के लिए। What is that? और वो क्या है? That is और वो है knowing the Lord Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना। I just wanted to throw a little light about Jesus Christ according to the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ प्रकाशन देना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्रकाशन की बात आपको बताना चाहता हूँ। This Jesus Christ, ये यीशु मसीह who was born 2000 years ago, जिनका जन्म 2000 साल पहले हुआ था, born in Bethlehem. वो बेतलहम में जन्मे थे। Before he was born, उनके जन्म के पहले about more than 500 years, लगभग 500 से भी ज़्यादा समय के पहले a prophet, एक भविष्यवक्ता he prophesies. उसने भविष्यवाणी की। In Isaiah chapter 7 verse 14, यशाया अध्याय 7 वचन 14 में you'll hear the word. It's almost about 800 to 900 years before the birth of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 या 800 साल पहले लिखा गया है। Therefore the Lord himself will give you a sign. Lord himself will give you a sign. Behold, virgin shall conceive and bear a son, Virgin shall conceive and bear a son. and shall call his name Emmanuel. He called his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस तरह से ये वचन कहता है। This happened. ये हुआ। That means a virgin shall conceive and bring forth a son. She will call his name Emmanuel. ये कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। In Matthew chapter 1, मत्ती अध्याय 1 में if you read अगर आप यहाँ पर पढ़े verse 20 and 21, वचन 20 और 21 में, listen. इसे गौर से सुनिए। But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, Joseph, son of David, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, do not be afraid to take to you Mary as your wife, for that which is conceived in her womb is of the Holy Spirit. that which is conceived in her of Holy Spirit. And she will bring forth a son, She will bring forth a son. and you shall call his name You Jesus, shall call his name Jesus. for he will save his people from their sins. He will save his people from their sin. ये वचन कहता है, जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस तरह से उसने कहा। What happened here? देखिए यहाँ पर क्या हुआ। This Joseph, ये यूसुफ, he was engaged with a woman called Mary. उसकी मंगनी मरियम नाम की लड़की से हुई थी। उसकी मंगनी हो गई थी। That Joseph and Mary, they are going to marry. यूसुफ और मरियम ये विवाह करने वाले थे, इनकी शादी होने वाली थी। Before their marriage, और उनके विवाह के पहले ही Joseph got a news यूसुफ को एक खबर मिली that the woman that you are going to marry, she is already conceived and she is pregnant. कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है मरियम, वो तो गर्भवती है, वो इस समय गर्भवती की अवस्था में है। This Joseph was a righteous man.
ये यूसुफ तो धर्मी व्यक्ति था। What he did? उसने क्या किया Let me not say this news to anybody. कि मैं ये खबर किसी को नहीं बताऊंगा। If I go and tell to the people, अगर मैं जाकर लोगों को बताऊं according to the existing law, तो वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार that woman should be stoned to death. उस स्त्री को पथरवाह करके मार दिया जाएगा। So he wanted to put her away. तो वो उसे छोड़ देना चाहता था। That time, उस समय an angel appeared to him. एक स्वर्गदूत जो है, प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसे He दर्शन दिया। said, उसने कहा, Joseph, परमेश्वर के दूत ने उसे स्वप्न में कहा, son of David, हे दाऊद की संतान यूसुफ, do not be afraid to take Mary as your wife. मरियम को अपने घर अपनी पत्नी के रूप में लाने से मत डर। The one she is conceived in her womb is of the Holy Spirit. क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो तो पवित्र आत्मा की ओर से है। She was conceived by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। She will bring forth a son. वो एक पुत्र को जन्म देगी You call his name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों के पापों से उन्हें बचाएगा। Jesus means यीशु का अर्थ है he's the Savior. वो उद्धारक है। Save his people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। वो लोगों के पापों से उन्हें उद्धार देगा। Jesus means यीशु का अर्थ the है one who saves his people from their sin. ऐसा जो अपने लोगों को पापों से बचाता है। That is what his name. और यही उसके नाम का अर्थ है। Jesus means यीशु के नाम का अर्थ है Savior, उद्धारक। saving the people from sin. लोगों को पापों से बचाता है। No other name. उसके लिए और कोई नाम नहीं है। If you read Acts chapter 4:12, अगर आप प्रेतों के काम 4:12 में पढ़े, salvation is in no other name किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, under heaven, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, among people, यानी मनुष्यों में there is no other name given among men by which a man be saved. और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। The name Jesus. यीशु मसीह का नाम, Only one name. केवल एक ही नाम है। My beloved. मेरे प्रिय लोग, Then Matthew 1:23 says, फिर मत्ती 1:23 इस तरह से कहता है, it says like this. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. You understand क्या आप समझ रहे हैं? how this has happened? देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। This is what Isaiah said. यशायाह ने यही तो कहा था। A virgin shall conceive and bring forth the son. She will call his name Emmanuel. कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस तरह से यशायाह ने कहा था। परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह ने यही तो कहा था। According to that, उसके अनुसार Jesus was born. यीशु का जन्म हुआ Then there the name is Emmanuel. और उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। Emmanuel means इम्मानुएल का अर्थ है God with us. परमेश्वर हमारे साथ, यही इसका अर्थ है। That means God with us. इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। Understand it, my beloved. इसे समझ लीजिए प्रिय लोगों। This Jesus यीशु was born. उसका जन्म हुआ He is और वही God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। That's why the name Emmanuel. और इसलिए इम्मानुएल नाम रखा गया है। Are you able to get it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? It's not ordinary. वो कोई साधारण नहीं है। Understand it. इस बात को समझ We लीजिए। must know it. आपको इसे जानना This होगा। Jesus ये यीशु, is God Himself. यही यीशु स्वयं परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। But in the world, people don't know. लेकिन संसार में लोग इस बात को नहीं जानते, Because unless we get into the Word of God, क्योंकि जब तक कि हम परमेश्वर के वचन में न जाएं, we will not able to know हम नहीं जान पाएंगे who is this person. ये व्यक्ति कौन है। He was so humble. वो इतना नम्र था, He was so humble. वो इतना नम्र था। He came to do the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। He himself personally came. वो स्वयं व्यक्तिगत रूप में आया Fulfill और उसने पूरी की
to fulfill the righteous requirement of law. कि जो व्यवस्था की धार्मिकता की मांग थी उसे पूरा कर सके, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आया कि उस व्यवस्था को पूरी Came करे। to fulfill the righteous requirement of law. वो तो व्यवस्था की धार्मिकता की मांग को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, वो इसीलिए आया। What is the righteous requirement of law? व्यवस्था की धार्मिकता की मांग क्या है? व्यवस्था की जो मांग है धार्मिकता की, वो क्या है? His son Adam, the first man, कि उसका पुत्र आदम जो पहला मनुष्य था, because of his disobedience, उसने जो आज्ञा भंग की उसके कारण according to God's word, परमेश्वर के वचन के अनुसार death sentence came upon him. मृत्यु दंड उसके ऊपर में आ गया। Death sentence was upon the man. मनुष्य जाति पर मृत्यु दंड था। After that, all the people, those who born after Adam, यानी आदम के बाद जितने भी लोग जन्मे उन सभी के ऊपर, every person was carrying the death sentence. हर एक मनुष्य के ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा थी, सभी मृत्यु दंड के अधीन थे। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Romans 8:3 says, रोमियो 8:3 कहता है, what the Lord could not do, जो व्यवस्था नहीं कर पाई but God did it उसे परमेश्वर ने किया by sending Jesus Christ, यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। and he condemned sin उसने पाप पर दंड की आज्ञा दी in him. उसमें। Romans chapter 8:4, the righteous requirement of law must be fulfilled. रोमियो 8:4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि पूरी की जाए। That's why he came, इसीलिए वो आए that's why he died, और इसीलिए वो मर गए that's why he condemned sin. और इसीलिए उसने पाप पर दंड की आज्ञा दी। That means law is fulfilled. मतलब व्यवस्था पूरी हो गई। Righteous requirement of law is fulfilled in Christ Jesus. मसीह यीशु में धार्मिकता की जो व्यवस्था की मांग थी वो पूरी की गई, वो पूरी हो गई। Then he ascended after third day, rose again, ascended to heaven. और फिर वो तीसरे दिन फिर से जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए, स्वर्ग में चले गए। People may be having so many questions. लोगों के मन में शायद बहुत से सवाल हो। Where is Jesus Christ today? आज यीशु मसीह कहाँ पर हैं? Do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? I will read and show to your word. मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूँ। This is for the informations and the understanding of every single human beings on this earth. ये तो इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए है, हर एक मनुष्य की समझ के लिए है। This is for the knowledge of every single person. ये तो हर एक व्यक्ति के ज्ञान के लिए, समझ के लिए है। This is what the understanding of everyone. और यही तो हर एक की समझ है। After that, whatever you want to do, do it. उसके बाद में आपको जो करना है आप उसे कर सकते हैं, आप उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। Believe or don't believe. विश्वास करें या न करें। I will read one word and show to मैं you. एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ। We will go to the Bible. हम बाइबल में देखते हैं In Ephesians chapter 1, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 verse 20 and 21, वचन 20 और 21। what is written there? यहाँ पर क्या लिखा है? मैसेज अनुवाद से हम इसे पढ़ते हैं। All this energy issued from Christ। Listen, it is written like this. देखिए इस तरह से लिखा है, All this energy issues from Christ. God raised him from death God raised Jesus from the dead, and set him on a throne set him on a throne in deep heaven। in deep heaven. देखिए ये कहता है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। यानी परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, यानी परमेश्वर ने उसे वहां पर बादलों के ऊपर उठाया और स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बिठाया है। Beloved, प्रिय लोगों, God raised Jesus परमेश्वर ने यीशु को जिलाया and set him और उसे अपने साथ बैठाया, on a throne एक सिंहासन पर बिठाया deep in heaven. जो कि स्वर्ग की गहराई में है, उस पर बैठाया। It says, ये इस तरह से कहता है, deep in heaven. Next, in charge of running the universe। you see the word. He set him in deep heaven in charge of running the whole universe.
Everything from galaxies to government, everything from galaxies to government, no name and no power exempts from his rule, no name, no power exempted from his rule, and not just for the time being, not just for the time being, but forever. but forever. देखिए ये कहता है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा उसके ऊपर बैठाया है। यानी यीशु को उसने वो अधिकार दिया कि उसके अधिकार से कुछ भी बाहर नहीं है। ये तो केवल कुछ समय के लिए या कुछ समय काल के लिए नहीं, लेकिन ये तो हमेशा हमेशा और निरंतरता के लिए है। I will describe it one more time. एक और बार मैं इसे बताता हूँ। If we all should know, my beloved, मेरे भाइयों, हम सबको इसे जानना जरूरी है। God raised Jesus Christ from the dead, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया and he has set him on a throne which is deep in heaven. और उसने उसे उस सिंहासन पर विराजमान किया जो कि गहरे स्वर्ग में है, Deep in heaven, यानी स्वर्ग की गहराई में। high and exalted throne. वह तो बहुत ही ऊंचे पर उठाया गया सिंहासन है, उस सिंहासन पर बैठाया। Jesus today seated on high and exalted throne. यीशु आज सबसे ऊंचे पर उठाए गए सिंहासन पर विराजमान हैं। He is seated there, यीशु वहां पर बैठे हैं, deep in heaven, वो तो स्वर्ग की गहराई में हैं far above, और सबसे ऊपर में वो हैं, in charge of running the universe. और वो तो पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए इंचार्ज हैं। He is in charge of running the universe. वो पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए इंचार्ज अधिकारी हैं। From where? कहाँ से? From galaxy गैलेक्सी से to the government. गवर्नमेंट तक। Galaxy means गैलेक्सी का मतलब है if you go, अगर आप जाएं find out galaxy. और गैलेक्सी को देखें, To reach out the galaxy, गैलेक्सी को पहुंचना चाहे scientifically, वैज्ञानिक रूप में the light will take to reach 14.5 billion light years. ज्योति को पहुंचने के लिए 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाते हैं। 14.5 billion light years. 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स यानी इतने प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। The light will reach there after 14.5 billion years. यानी जो प्रकाश है वो तो 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद में पहुंचता है। So high, इतना ऊंचा है, so deep, इतना गहरा है, so high. इतना ऊपर है That throne, वो सिंहासन। Jesus is seated today. और आज प्रभु यीशु मसीह उसी सिंहासन पर विराजमान हैं। He is in charge of running the whole universe. और वो तो इंचार्ज है कि पूरे यूनिवर्स को वो चलाते जाए, Galaxies to the governments. गैलेक्सी से लेकर प्रशासन तक। Governments, गवर्नमेंट, no name, कोई नाम नहीं, no power कोई सामर्थ नहीं exempted from his rule. जो उसके शासन से बाहर हो, उसके अधिकार से बाहर हो। इस तरह से No name, कोई नाम नहीं no power और ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है exempted from his rule. जो उसके प्रशासन से, जो उसके अधिकार से बाहर That हो। means all name, मतलब सारे नाम, all power सारी सामर्थ, are under his सब authority. कुछ उसके अधिकार में है। Not for few days, केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, forever. लेकिन हमेशा के लिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए, सब कुछ सदाकाल के लिए उसकी अधीनता में है। Then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, read that. इसे पढ़ते हैं, Beloved, very important to understand. He is in charge of it all, has the final word on everything. You see, he is in charge of it all. He has the final word. On everything. Everything. At the center of all this, Center of all this, that's all. Christ rules the church. Her Christ rule the church. इसे गौर से सुनिए, ये कहता है कि सब कुछ जो है वो सब उसके अधीन कर दिया गया है, यीशु के अधीन कर दिया गया है, यानी सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में दे दिया गया है।
Hello. सुनिए, Why I said this? मैंने ये ऐसा क्यों कहा है? Every single person in the world must know him. देखिए, संसार के हर एक व्यक्ति को उसे जानना बहुत ही जरूरी है। God's word. परमेश्वर का वचन Never- जानना जरूरी है। Never tell lies. ये कभी झूठ नहीं बोलता। These are all truth, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ये तो पूरी तरह से सच्चाई है। He is in charge, वो इंचार्ज है, running the universe. पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, Galaxies to the government. गैलेक्सी से लेकर गवर्नमेंट No तक। name, no power exempted from his rule. कोई नाम, कोई सामर्थ्य उसके शासन से, उसके अधिकार से बाहर नहीं है, He holds the final say. और उसके पास में अंतिम वचन है। It is not devil what he says. शैतान जो कहता है वो ऐसा नहीं है। One word Jesus speaks. यीशु एक शब्द कह दे, I do not know what will happen to the devil and his angels, all the demonic forces, where they will end up. तो मुझे पता नहीं कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं का क्या होगा, वो सारी कहाँ पर जाकर खत्म होगी, मुझे पता नहीं। Not even, no, we can't imagine what will happen. यानी देखिए, हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is the person, यही वो this व्यक्ति है, Jesus Christ, ये यीशु मसीह, one who died on the cross of Calvary जो कलवरी के क्रूस पर मर गए, for you and me. आपके और मेरे लिए। Can you compare the love of this person? क्या आप इस व्यक्ति के प्रेम की तुलना कर सकते हैं? Able to understand this? क्या आप इसे समझ सकते हैं? You are not yet understand, try to understand. अगर नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। Bible tells बाइबल बताती है, this God ये is परमेश्वर, God, Emmanuel, God with us. ये परमेश्वर इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। In Daniel chapter 5:23 says, दानियल 5:23 इस तरह से कहता है, he was speaking to a king. वो राजा से कह रहा था। Read that word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। Lifted yourself up against the Lord of heaven. They have brought the vessels of his house before you, and you and your lords and your wives and your concubines have drunk wine from them, and you have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know, and the God who holds your breath Here in it his is. hand. You see, the God who holds your breath in his hand And owns all your ways, owns all your ways. you have not glorified. You have not glorified him. देखिए, वचन कहता है, दानियल ने राजा से कहा, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो तो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। इस तरह दानियल ने बेलशस्सर से कहा। What I want to say here, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, God परमेश्वर who holds your breath जो आपके प्राण को थामे हैं in his hand अपने हाथों में, and all your ways in his hand, और आपके सारे मार्ग तो उसके हाथों में हैं, you have not glorified him. आपने उसकी महिमा नहीं की है। This was the message to the king. ये तो संदेश उस राजा के लिए था, That night he died. और उसी रात वो मर गया। What the people think of Jesus? लोग यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? My beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, your breath, आपकी श्वास, my मेरी श्वास, my ways of life, मेरे जीवन के मार्ग, it is all in the hand of Jesus Christ. ये सब यीशु मसीह के हाथों में हैं। How much you are glorifying him? आप उसे कितनी महिमा दे रहे हैं? Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? If you don't know, अगर आप उसे नहीं जानते try to हैं know him. तो उसे जानने की कोशिश कीजिए। Just give him thank you, Lord Jesus, that you loved me and shown your love on the cross of Calvary. बस उससे कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया और कलवरी पर उसे प्रकट किया। He will never condemn you. वो आप पर कभी दोष नहीं लगाएंगे, He will embrace you. वो आपको गले लगाएंगे, He will love you. आपसे प्रेम You करेंगे, will live with him forever. और आप हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे।
May the Lord give you wisdom, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, understanding. समझ दे Know this Lord Jesus Christ. कि आप इस प्रभु यीशु मसीह को जाने। By knowing, उसे जानने के द्वारा you will have eternal life. आप अनंत जीवन पाएंगे, You will live forever. आप सदा के लिए जिएंगे। John chapter 17:3. यूहन्ना 17:3 कहता है, According to the word, वचन के अनुसार you will live forever. आप सदा के लिए You जिएंगे। are blessed, आप brother. तो आशीषित हैं मेरे भाई, You are blessed, my sister, आप आशीषित हैं मेरी बहन, by hearing this word. इस वचन को सुनने के द्वारा। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमेन।